students. We'll wait just for 2 minutes and then I'll start because very few students are there as compared to regular attendance. So till that we'll discuss. If you have any doubt, then we will regarding with our topic. Then we'll discuss. अगर आपको कुछ डाउट है तो, और else yesterday I have discussed. So I have started numericals, unsolved numericals from our text. So I will give you I have solved everything in front of you. I have shared the screen, but I will explain you how we got that. जो भी manipulation, calculation का part है, that you will do. It is already solved. You can see. But still I'll explain you how we got all these things. So we have discussed, and yesterday I told you that you be ready with your textbook, right now? So I hope that you all are having your textbook. So right now you open your page, unsolved numericals from your textbook. So open page number 213. So fourth question we have discussed already. Potential, regarding with potential energy. What is the potential energy? Potential energy is the work done against electrostatic force. उसका मीनिंग मैंने बताया आपको कि if external field is present, means first charge when it is brought from, are you getting what I am saying? What I want to say, suppose Q1 infinity में था, उसे आपने प्रेजेंट लोकेशन में लाके रखा, बट यहाँ पे दूसरा एक भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो वो Q1 के ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ऑन इट. बट वही अगर आप मान लो सपोज Q2 आपका इंफिनिटी में है एंड नाउ यू आर ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन, तो आपने उसे इंफिनिटी से यहाँ पे लाके रखा, बट इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन एट दैट पोजीशन. What will happen? That Q1 will exert some force on Q2 because there is external field is present because of Q1, so it will act on Q2. So force act हो गया तो but obvious attraction होगा, repulsion होगा, means displacement will be there. Means we can say that what is at that time जो work हो रहा है that is stored as a potential energy. So we can say that this potential energy, if it is purposely mentioned, right, find the potential energy acting on charge Q2, Q3, some if specific charge is mentioned, then you have to just worry about the all combinations regarding with that. Suppose Q3 है तो already present वहाँ पे होगा Q1 and Q2, तो you have to worry about Q1 Q3 pair, Q2 Q3 pair. And if not a single charge is mentioned, उन्होंने total system का अगर बोला है, if they have told nothing is mentioned in the numerical, if it is about the total system, then we have to consider all the combinations. Means suppose 3 charges है तो Q1 Q2, Q1 Q3 and Q2 Q3. 4 charges है तो all combinations Q1 Q4, Q2 Q4, Q3 Q4, then Q2 Q4, like that. Means जितने भी Q2 Q3, all the combinations we have to consider if it is regarding with the system. So वही numerical था yesterday which we have done. In that what we have seen just once again. Negative दिया है, but for our safer side we are avoiding that negative sign and we are considering this distance as a and this distance as a only. So that is very easy for us. If we have considered Q1 Q2, तो क्या हो जाएगा? Distance between them is a. If you are going to worry about Q1 and Q3, ये pair form किया तो दोनों के बीच का distance हो जाएगा 2a. Like that. That's it. That only we did. See, formula 1/4π0 common. जो possible combination उन्होंने बोला है. What is the numerical? That total potential energy of the system is 0. तो ये जो U है, it is 0, it is given. So directly what we have to worry?
How many combinations are possible? 3 charges है तो Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 and respective distance. बस बाद में क्या किया है? Only we are going to substitute all these values. उसको equate करो 0 से, then you will get ratio of Q1 Q capital Q upon small q. That's it. Understood? Now next है next numerical. If you have your textbook, then please I'll read. I will explain you how we have written. Just directly don't see what is written on that page. So I'll explain you how is that. Find the ratio of potential differences that must be applied across parallel and series combination of two capacitors. Means we have to find out the bit obvious. Potential is not going to remain same. We know. In series में potential difference क्या होता है? Change होता है. Parallel में potential difference constant रहता है. So by using that logic, we have to find out V1 upon V2. And what is V1 and V2? V1 is potential difference when they are connected in series. And second is parallel and series. जो उन्होंने mention किया है. I have written over there. U1 is energy stored in parallel and U2 is energy stored in series. Okay. Now, and what is given? One more thing is given that two capacitors C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2. यानी कि ये C1 and C2 जो है उसका रेशियो गिवन है. C1 and C2 का जो भी रेशियो है that is given over there. C1 upon C2 is equal to half. And with the so that energy stored in these two cases becomes same. Energy, yesterday we derived that derivation. What is energy? I told you at that time, just go for only one form. Other form जो है वो आपको you can form. आप बना सकते हो. जो दूसरे फॉर्मूला है वो आप बना लोगे. Half QV and all whatever. उतने सारे बाहर करते मत बैठो. Only one एक याद रखोगे आप. That U is equal to half CV square. That's it. तो अभी आपको यहाँ पे see what is given, energy is given, capacitance पता है and potential difference का रेशियो निकालना है. So we will use this formula. Okay, आपने ये formula means first of all which formula we have to use इतना तो decide हो गया. Sometimes exam में क्या होता है पता है, अपना गाड़ी कहाँ पे तो भी stuck, we are going to stuck यार आगे क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है. But at least जो भी data given होता है ना regarding with that जो भी formula आपको पता है, हाँ ये फॉर्मूला हो सकता है, एटलीस्ट उतना तो लिखो सो दैट यू विल गेट सम मार्क्स, बिकॉज स्टेप्स वाइज मार्क्स रहते हैं. फॉर्मूला लिखा हाफ मार्क, सब्स्टिट्यूट किया हाफ मार्क, ऐसे इट विल डिपेंड ऑन द मार्क्स दैट हाउ मार्क्स कितने मार्क्स का वो न्यूमेरिकल है. नाउ तो यू अंडरस्टूड दैट इसमें गिवन क्या है, एनर्जी इज द सेम मींस पैरेलल एंड सीरीज में जो एनर्जी है वो सेम है. U1 is equal to U2. And one more thing, what is same in this case? And what is given? One more thing, C1 by C2 is equal to half. So by that you got C here. We got C1 is equal C2 is equal to 2C1. Okay. अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को अगर हम लोग डालते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, भले ही उसका ऐसा होता है कॉम्बिनेशन, बट रिजल्टेंट CP होता है वो हमेशा डायरेक्ट एडिशन होता है C1 plus C2. एंड हाउ वी डिड इट, हम लोगों को ये डेरिवेशन था एंड वी डिड दैट डेरिवेशन आल्सो. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यू कैन सी दैट CP is equal to C1 plus C2. तो C2 की जगह पे रख तो वहाँ पे 2C1, तो you will get 3C1. Okay, then see here 3C1 आ गया. U1 क्या है here, energy stored in parallel. So U1 का फॉर्मूला यूज करो, हाफ CP into V1 square. CP आपको मिल गया 3C1. तो just till this you keep as it is, 3/2 C1 V1 square over. Then go for series combination. Series combination क्या होता है, 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2. Correct. Directly ये फॉर्मूला आपको, या you can go for
हम लोगों को C1 अभी कैसे हम लोग बोलते हैं क्या हुआ है कि डायरेक्टली वी कैन से दैट CS is equal to C1 C2 प्रोडक्ट अपॉन इट्स एडिशन। तो वही किया, C1 C2 की जगह पे 3C1 रख दिया, सॉरी 2C1 sorry, C1 into 2C1 you will get 2C1 square and 3C1, so you got CS। अभी वापस एनर्जी फाइंड आउट करो, U2 half CS into V, both of them are equal, तो दोनों को इक्वेट कर दो, U1 is equal to U2, तो आपको जो एनर्जी मिला है सीरीज में, पैरेलल का एनर्जी एंड सीरीज का एनर्जी दोनों को इक्वेट होने के बाद आपको V1 एंड V2 ओनली क्या है, अननोन टर्म्स है, तो V1 by V2 you will get 2/9 and go ahead in this way। it's very easy type of numerical, not only this much numericals। कैपेसिटर्स के ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, किसके ऊपर कितना चार्ज है, ये टाइप के भी न्यूमेरिकल मींस इफ यू विल गो फॉर ओल्ड बुक्स ना, तो उसमें तो डाइजेस्ट जो भी आपके पास रहेगा, मैं ऐसा सजेस्ट नहीं कर रही कि यू जस्ट बाय, जो भी आपको से जस्ट यू गो एंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स मींस सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है, पर मींस and the easy types you have to just go for difficult types also ना, तो वो भी और डिफिकल्ट नहीं होता, वो इजी है, ओनली उसके वजह से आपका अंडरस्टैंडिंग विल बी मोर इफेक्टिव हो जाएगा। देन नेक्स्ट बोलिए मैं जब आया था ना तो उसको ऑटो अपडेट डाला फॉर दिस न्यूमेरिक, फिफ्थ वन दैट इज द थियोरेटिकल वन, दैट्स व्हाई it is just regarding with capacitor। इन थाने में इनको और दी Two charges of magnitude -4q and +2q are located at distance at points 2a and 5a। See कि -4q चार्ज है, -4q चार्ज है, वो कहाँ पे चार्ज है, प्लस वो कहाँ पे प्रेजेंट है, 5a। मींस इफ यू विल हैव एक्सेस 2a पे है ये वाला और 5a पे है दूसरा वाला। नाउ flux due to these charges through a sphere of radius 4a at which at its center of the origin, means ऐसा है 4a है, तो ये तो बट ऑब्वियस ये बाहर चला गया, तो वी शुड नॉट वरी अबाउट दिस 2a क्योंकि उसका रेडियस क्या था 5, और 2q के बारे theorem states that what is total electric flux, that sum of all the charges upon epsilon 0। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ओनली -4q, तो 4q by epsilon 0, so that you will get that answer। So that's why you can see that why we have skipped that other term so because that is out of the sphere and Gauss का थ्योरम यही बोलता है कि the total number of enclosed surface पे how many charges are there, that is addition of all those upon epsilon 0। Next we'll go for a, it's a numerical। See here, all are getting now what we are doing, anyone is having any doubt या एक्स्ट्रा लेक्चर है तो नो नीड टू पे अटेंशन, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऑल आर गेटिंग ना व्हाट वी आर डूइंग। हाँ मैम, इट्स वेरी क्लियर, माय वॉइस इज क्लियर ना? बटन and I told you already you should be ready for textbook, अगर आपके पास textbook है that will be very easy for you। Now we'll go for 8th numerical, 6
microfarad capacitor is charged by 300 volt supply. तो यहाँ पे क्या गिवन है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस? Okay. हमें if you have any doubt ना, that means regarding with आवाज नहीं आ रही कि अरे क्या हो रहा है? Okay. My capacitor है whose capacitance means from the first equation, first sentence we are getting that एक कैपेसिटर है, let us consider as a C, उसको बाद में हमने C1 कंसीडर किया, उस कैपेसिटेंस इज गिवन एंड इज चार्ज्ड बाय 300 वोल्ट, यानी कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो गिवन. Now what the next sentence? It is then disconnected from the supply and it is connected to another uncharged 3 microfarad capacitor. Remove one को remove किया and it means एक बार बताया मैं बोलिए अगर को रिमूव नहीं किया, जो है उसे डिस्कनेक्ट किया and then from the supply and it is connected to another uncharged 3 microfarad capacitor. अभी उसे कहाँ पे कनेक्ट किया है? दूसरा कैपेसिटर है whose capacity microfarad. सिंपली बैटरी को यहाँ से निकाल के वापस दूसरे वाली जगह पे लगा दिया. C1 and C2 है and उसका potential difference है. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in form of heat and electromagnetic radiation? So first of all आपको क्या करना है? Second वाला जो है that is uncharged capacitor. So first of all we will try to find out its charge. How much is the charge? Just a minute. कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना. You know how is the charge? तो आपने वहां पे first of all we got Q over there. It's very easy ना. First case only, just I'm talking about the first case. उसका आपके पास कैपेसिटेंस था and potential difference also we were having. So you will get electrostatic energy. How much is the electrostatic energy of that capacitor? So U is equal to half CV square. So we got that energy is equal to this much. और उसको आपका कैपेसिटर चार्ज भी मिल जाएगा. Whatever that Q is equal to CV. तो V हम लोगों को वही फाइंड आउट करना है ना कि उसका एनर्जी कितना लॉस हुआ. तो फर्स्ट केस में कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है और दूसरे केस में कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, वो दोनों फाइंड आउट करके उसको सबट्रैक्ट करोगे तो यू विल कम टू नो. अभी ये हो गया फर्स्ट केस का. Q इज इन प्रोपोर्शन विथ V. तो उसका V सेम है, 300 वोल्ट है. तो अभी आप क्या कर सकते हो? सेकेंड टाइप, when two capacitors of capacitance C1 and C2 are connected in a parallel. अगर हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? उसका पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू रिमेन सेम. करेक्ट. तो हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ means what logic we are applying over here? If two capacitors are connected in a parallel manner, अगर आप उसे पैरेलल में डालते हो तो we know that उसका पोटेंशियल is going to remain same.
तो वही लॉजिक अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो we will get over here resultant capacitance when they are connected in parallel, तो उसके ऊपर का आपको चार्ज भी मिल सकता है। And once we got the charge, so we can say that how much is the energy of the system, तो half CV square आपके पास अभी only for 3 microfarad capacitor के लिए we can say directly that how much is the energy of the system, वही फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर का यूज किया, इंस्टेड ऑफ दैट वी आर यूजिंग Q स्क्वायर बाय 2C, और दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यू विल गेट टोटल एनर्जी लॉस्ट ऑफ दैट कैपेसिटर। Now next one is also very interesting one. You will come to know everything also. एक सिंपल उन्होंने दिया है कि 125 small liquid drops each carrying a charge of 0.5 microfarad and each diameter is 0.1 meter form a big drop. Calculate potential at the surface of bigger drop. See, it's very easy. हमारे पास मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कंसिडर करो कि मर्क्यूरी होता है, अगर बड़ा सा मर्क्यूरी का आपके पास में एक ड्रॉप रहेगा, अगर वो नीचे गिर गया तो होता है n नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं ना, तो वैसे ही ये टाइप में उन्होंने दिया सेइंग दैट 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स है, मींस n दिया हुआ है यहाँ पे, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ n इज 125 and charge of each charge of that each drop, उन्होंने each charge का ड्रॉप दिया है Q is equal to 0.5 into 10 raised to वो माइक्रो कूलम में है and the potential difference at the surface find out. ये कमेंट मैंने ठाण वन में गांव की ओड़ी दोनों आपने नंजर ही तो फॉर्मूला क्या करो, सबको Q तो मिल सकता है, Q कैसे मिल सकता है, कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, कितने चार्जेस है 125 नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, आपके पास सिंगल चार्ज का है तो n इंटू Q करो तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। मींस वी शुड नॉट वरी अबाउट दिस, हमें खाली R के बारे में सोचना है, कैपिटल वाला जो है उसको हम लोग रेडियस कंसीडर करते हैं R, कैपिटल R। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सिंपल क्वेश्चन है, देखो उसके ऊपर हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी वांट टू फाइंड आउट। तो ये कैपिटल R हो गया, हमारे पास वो कैपिटल R नहीं है, B का फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 Q by R। अभी 1/4πε0 which is known to us constant टोटल चार्ज का we know, इसके अंदर ऐसे नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल कितने पार्टिकल्स है 125 और हर एक का चार्ज इज गिवन टू अस, so Q into n करोगे तो you will get total charge of that bigger drop. Only we have to find out that capital R. अभी वो कैसे find out करेंगे? Simple logic is applied over here. Volume of the bigger drop, ये पूरे जो ड्रॉप है बड़ा वाला उसका वॉल्यूम is equal to n times volume of the smaller drop. एक सिंगल ड्रॉप है तो उसके n टाइम्स करोगे आप तो you will get they are equal. ये टाइप के तो न्यूमेरिकल हमने स्कूल में कितनी बार सॉल्व किए हुए ना। तो नेक्स्ट फिर प्रोसीड, यहाँ पे आपको Q मिल जाएगा, ये Q मिलने के बाद एंड यू विल गेट R ऑल्सो, हाउ यू विल गेट R? How we got all this?
तो सिंपली 4/3 pi r cube means bigger drop, volume of bigger drop is equal to n times volume of smaller one. तो जो स्मॉल कांस्टेंट टर्म से वो निकल गए, तो व्हाट इज लेफ्ट, r इज इक्वल टू स्मॉल r इनटू क्यूब रूट ऑफ n. 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5 स्मॉल r, वी आर नोइंग, बाय दैट यू विल गेट कैपिटल r. बस अभी ये फॉर्मूला यूज करो, सब्स्टिट्यूट ऑल, यू विल गेट द वैल्यू. क्लियर? सच अ सिंपल न्यूमेरिकल इज दिस. In this way we have to do this. Understood? Yes, all of you understood this. Now next, 10th. It's also very easy. Yeah? The dipole moment of water molecule is given. Now dipole moment is denoted by which letter? First of all, you should know that it is always denoted by small p. And what is that? It is nothing but the, yes, anyone? What is dipole moment? Charge into, means dipole क्या होता है? Two equal and opposite charges separated by finite distance. Dipole क्या होता है? Plus q minus q separated by finite distance 2l. That is called as dipole. So simply here what we have to do, and we did this numerical theory हमने किया हुआ इसका. A sample of water contains 10⁻21 molecules, means n is given. हमारे पास कितने number of molecules है? n कितना है? n is equal to c. It is mentioned over there. n is 10⁻21 molecules. Whose dipole moments are oriented in an electric field strength, means E is given. Capital E भी दिया हुआ है. Calculate the work to be done to rotate the dipoles from their initial orientation. Means suppose this is your E. और डाइपोल का पोजीशन कैसा है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे है, और उसका भी आपको क्या करना है? 90 डिग्री में रोटेट करना है. तो वी आर हैविंग ऑल द फॉर्मूलाज. इसका फॉर्मूला है TE, सी है TE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, बट n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो n से मल्टीप्लाई कर दो. तो W इज इक्वल टू NT cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. n दिया हुआ है, n is given, P is given, E is also given. cos थीटा क्या होता है? cos 0 वो पर्पस ही नहीं लिखा, बिकॉज वी नो कि cos 0 माइनस cos 90. cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0, तो 1 minus 0 you will get 1 only. So directly you will get answer over here. Such an easy numerical. Nothing is difficult in this. Okay, in this way we can do this. Now next 11. Now 11. First of all, whenever you are solving numerical, read it twice. First reading में कुछ नहीं समझ में आता है, तो you try to assume, try to identify what is given. Diagram है तो diagram से relate करके देखो, then you will get idea. One stroke में after one reading we are not getting anything. Little bit idea आता है, but second time पे reading करना must है. A charge 6 microcoulomb is placed at the origin and another charge minus 5 microcoulomb is placed on the y-axis. Means डायग्राम पे अगर आपके पास डायग्राम बुक है तो बुक में भी डायग्राम है, या फिर यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है. ये है अपना ओरिजिन. यहाँ पे ऑलरेडी 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एंड
P है वो y एक्सिस पे यानी कि उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 6, वहां पे दूसरा चार्ज रखा है. Now calculate the total electric potential at a point P whose coordinates are 8 and 0. But obvious वो पॉइंट यहाँ पे है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि what is the total electric potential at point P. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो ये केस में P यहाँ पे है, तो P के लिए आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A is also possible, due to origin is also possible ना? So we have to consider both the distances. तो आपको ये diagonal distance भी कंसिडर करना पड़ेगा. This distance also we have to consider. So what you will say? What is total V? V is equals to V1 plus V2. V1 क्या हो जाएगा? Suppose ये है आपका Q1, this is your Q2. So 1/4 pi epsilon 0 Q1 by R1 plus Q1. सिंगल के लिए क्या होता है? Q1 by R1 होगी, Q by R. But P point के यहाँ पे already there are two charges are present ना. So Q1 भी उसके ऊपर एक्ट करेगा, Q2 भी उसके ऊपर एक्ट करने वाला है. So what we will say? Q1 by R1 plus Q2 by R2. तो उसका ये डिस्टेंस आपको Q1 के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? AP फाइंड आउट करना पड़ेगा. Q2 के लिए आपको OP ऑलरेडी वी हैव, तो वो फाइंड आउट करो. Q1 क्या है? सपोज Q1 मेरा मैंने A कंसिडर किया है, तो वो हो जाएगा -5 into 10⁻⁶. एंड ये डिस्टेंस क्या है? बाय यूजिंग वी कैन से व्हाट पाइथागोरस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कैसे करते हो वो हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं. सी हियर R2 इज इक्वल टू इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8 0, इसके 0 6. तो x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. तो 8 minus 0 square plus 6 minus 0 minus 6 square. Anyhow, we are getting the same by using Pythagoras. Also, you will get the same 10 only. Now we are having Q1 R1, Q2 R2. Q2 यानी कि क्या जो ओरिजिन पे प्रेजेंट है वो 6 माइक्रोकूलम वाला, उसका डिस्टेंस तो वी हैव ऑलरेडी 8. तो सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट फाइनल आंसर. क्लियर? ये हो गया फर्स्ट पार्ट. वी वांट टू फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. P के लिए ऑलरेडी वहां पे A एंड O बोथ आर प्रेजेंट, तो वी हैव टू वरी अबाउट बोथ द चार्जेस, इसलिए वो कैसे किया. B पार्ट क्या है? कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P. इंफिनिटी से चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए क्या होता है? हम लोग क्या बोलते हैं? V व्हाट इज पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट ऑन दैट चार्ज, वो चार्ज के ऊपर का. तो वर्क डन क्या हो जाएगा? V into Q0, क्योंकि अपने पास वही है. अभी हम लोगों ने ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट किया. P का पोटेंशियल क्या है? देखो 2.25. अभी जस्ट नाउ वी गॉट इट ना, हम लोगों को ये पोटेंशियल मिला, यानी कि वी नो व्हाट इज द पोटेंशियल ओनली चार्ज. चार्ज के लिए उन्होंने देखो वहां पे क्या बोला है? प्रोटॉन को लाया है. तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 into मींस हम लोगों के पास वो P का चार्ज नहीं है, बट इन द सेकेंड पॉइंट दे हैव मेंशन्ड इट इज अ प्रोटॉन. तो प्रोटॉन का चार्ज अप्लाई कर लो, वी विल गेट दैट वर्क डन आल्सो. क्लियर? सो सिंगल पोटेंशियल अगर है मींस एक पहला वाला ही चार्ज है, वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन, तो वो वर्क डन इज ऑलवेज V into Q0 ही होता है. Now next है 12th वाला न्यूमेरिकल. I hope कि all are getting. Just I am everything solution ही important है, how to solve. Once we got the solution, then it's not difficult task for us that how to manage. Now 12th numerical, it's also very easy. In a parallel plate capacitor with air between the plates, with air यानी कि हम लोग बोलेंगे उसके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक है, एयर का डाइलेक्ट्रिक होता है 1, so K is equal to 1.
Each plate has an area is given 6 into 10 raised to minus 3 and the separation between the plates means small d is given 2 into 10 raised to minus 3 meter. And already I have written means जैसे जैसे मैं बोलते गई वहाँ पे आपने देखा रहेगा it is mentioned over here everything. K is equal to 1 वो सब मैंने लिख के रखा है. Now A point है calculate the capacitance of the capacitor. C find out करना है तो C कैसे find out करोगे आप? A epsilon 0 upon D. सी फर्स्ट पॉइंट के लिए A epsilon 0 upon D एरिया दिया है. epsilon 0 का वैल्यू हमें पता है 8.85 into 10 raised to minus 12 होता है. D is also given. So वो ही सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा. Now second is mentioned B point देखो. If this capacitor is connected to 100 volt supply means B दिया है अभी. What should be the charge on it? अभी आपके पास C है, V भी है, तो Q कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल Q is equal to 0 क्यों डाला है? Q0 C0 यानी कि विदाउट एनी डायलेक्ट्रिक होता है तो C0 बोला जाता है और यहाँ पे एयर को तो डायलेक्ट्रिक हम कंसीडर नहीं करते तो इसलिए वो C0 डाला है और वो Q0 आपको चार्ज मिल जाएगा. एंड थर्ड है C पॉइंट है. How would charge on the plates be affected if 2 millimeter thick mica sheet of K is equal to 6 inserted between the plates while voltage supply remains constant but it is connected. मीन्स अभी जो एयर था उसका डिस्टेंस बीच का डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर उतना ही थिकनेस का अभी प्लेट डाला मीन्स T is equal to D डाला तो C क्या हो सकता है आपका? वी नो दैट C is equal to अगर आपने कल मैंने जो आपको स्पेशल केसेस बताए थे वो देखे रहेंगे तो C is equal to K टाइम्स हो जाता है आपका कैपेसिटेंस. डायलेक्ट्रिक जितना इंसर्ट करोगे ना हाई वाला उतना कैपेसिटेंस बढ़ता है तो बस K1 दिया है उन्होंने माइका शीट का उससे मल्टीप्लाई कर दो you will get answer. Okay, in this way we can do this. तो ये Q C0 भी वगैरह करने की जरूरत हाँ बट यहाँ पे सप्लाई इज स्टिल कनेक्टेड. यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि सप्लाई इज स्टिल C is equal to K1 into C0 ओके बट C0 क्या है? अब यहाँ पे क्या है? सप्लाई V remains same. V remains same यानी कि हम लोग यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आपको वहाँ पे C0 भी मिला. हम लोग वैसे भी कर सकते थे डायरेक्टली. हाँ बट वोल्टेज इज रिमेनिंग सेम सो वी हैव टू गो फॉर दैट. K is equal to हाँ दोनों में चार्ज सेम रहेगा ना. इस पहले आपने डायलेक्ट्रिक डाला नहीं था और बाद में डायलेक्ट्रिक डाला. इस चार्ज के ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है? बिकॉज ऑफ डायलेक्ट्रिक बीच में इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे तो Q is equal to CV is equal to K times C0V मींस C के जगह पे K C0 डालो. C0V क्या होता है? Q0. हाँ इसके वजह से ये करना पड़ा बिकॉज भाई वी कैन नॉट डायरेक्टली पुट C0 बिकॉज डायलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है. पहले डायलेक्ट्रिक नहीं था और बाद में डायलेक्ट्रिक डाला है तो चार्ज इज गोइंग टू रिमेन सेम ना तो इसके लिए वह वैसे करना पड़ा. और फिर बाद में मींस व्हेन वी हैव कनेक्टेड आपको चार्ज ही फाइंड आउट करना है ना बट व्हेन वी हैव इंसर्टेड डायलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने के बाद क्या हो जाता है? बीच में भी इंड्यूस चार्जेस आ जाते हैं तो वो इंड्यूस चार्जेस फाइंड आउट करने के लिए फिर आपको ये Q जो है वो ये मेथड से करना पड़ा क्योंकि हमें वो ही फाइंड आउट करना है. C तो नहीं फाइंड आउट करना है. इसके लिए इजी लॉजिक इज दैट C is equal to K1 C0 और Q क्या होता है? Q is equal to CV. C क्या है? K times C0.
what we did, फर्स्ट केस में आपको क्या मिला, C0V got. फर्स्ट केस में C0V got because air was there, correct. सेकेंड केस में आपने क्या फाइंड आउट किया, सेकेंड केस में if the capacitor is connected to 100 volt supply, तो एयर ही है, वो टाइम का आपने चार्ज फाइंड आउट किया when air was there, Q0, okay, Q0 फाइंड आउट कर लिया. Now थर्ड केस में मैंने बोला है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू थिकनेस. ऐसा माइका शीट बीच में डाला है जिसका हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है. तो वो केस में चार्ज कितना आने वाला है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ with the help of that dielectric, मीन्स जो हमने K is equal to something यूज किया है, K is equal to 6 ऐसा कुछ, तो माइका शीट, हाँ करेक्ट. तो ये माइका शीट डालने के बाद चार्ज कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है. तो सिंपल, K is equal to क्या, Q फाइंड आउट करना है था. तो K क्या होता है, C into V. C क्या होता है, K टाइम्स C0V. अभी अपने पास क्या है, K पता है आपको, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे Q0 ही फाइंड आउट करना है. अभी आप लोगों को क्या, Q0 तो ऑलरेडी आपने फाइंड आउट करके रखा है, वैसे करो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इट डजंट मैटर, सेम ही आंसर आने वाला है आपको. तो इतना सिंपल है, बट वही आप देखने पे लगा रहे कितना कंफ्यूजन है. इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी इजी. Q इज इक्वल टू CV. C क्या है, K टाइम्स C0. बस वो वैसे करके आपको हो जाएगा. अभी 13 का जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू कैसे करना है. यू विल डू इट, इट्स वेरी इजी, या फिर आई विल शो यू ओनली. पहले मैं आपको बता देती हूँ, बाद में फिर मैं शेयर करती हूँ कि कैसे करना है. सी फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस कैसा है, 1 2 3 और बीच का हर एक का डिस्टेंस उन्होंने ये 1 दिया है, K1 दिया है, K3 दिया है और ये 6 दिया है. और 1 3 6 आर K1 K2 K3 और दे आर सेपरेटेड बाय D/3. तो आप मुझे ये बताओ पहले, ये कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज है या पैरेलल है. वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर होता है, वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सबका वन साइड टाइड टुगेदर. ये देखो अभी ये केस में क्या है, सबका अदर साइड टाइड टुगेदर, सबका वन साइड. ये केस में ऐसा नहीं है, ये प्लेट का फर्स्ट साइड है, दूसरा खत्म हो गया, फिर थर्ड चालू हो गया, मींस पहले वाले को दूसरा, दूसरे वाले को तीसरा, तीसरे वाले को चौथा, यानी कि ये होता है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन. पैरेलल क्या होता है, सबका एक प्लेट का पॉजिटिव चार्ज इज कनेक्टेड टू वन साइड, सबका नेगेटिव इज कनेक्टेड टू अदर साइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन. तो आपको ये पहले समझ में आएगा कि ये है क्या अपना सीरीज कॉम्बिनेशन. तो बस हाउ टू प्रोसीड, अभी C1 C2 C3. अभी हम लोग क्या करेंगे, 1/CS फाइंड आउट करो. कैसे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. तो इंडिविजुअली फाइंड आउट करो. C1 क्या होता है, A एप्सिलॉन 0 K1/D. तो A अभी यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट मेंशन, सो A एप्सिलॉन 0 K1 तो फर्स्ट केस में 1 है, D/3. सेकेंड केस में ये हो जाएगा 3, नेक्स्ट केस में हो जाएगा 6. तो अभी ये सबका 1/C1 1/C2 1/C3. फिर एलसीएम के मेथड से फाइंड आउट करो, यू विल गेट आंसर, करेक्ट आंसर आ जाता है. ये हो गया फर्स्ट का, ये हो गया, दिस इज अबाउट द फर्स्ट प्लेट. अभी सेकंड प्लेट का, सेकंड जो है बी वाला, उसका मैं आपको आइडिया देती हूँ कैसे करना. सी ये है अपना पूरा प्लेट, उसको बीच में डिवाइड किया है. ये पूरा डिस्टेंस है वो है D और K इज इक्वल टू 4 K1. और ये जो दूसरा वाला प्लेट है उसे क्या किया है, डिवाइड किया है, और उसका ये एरिया जो है वो है A/2. हर एक का एरिया A/2 है और ये डिस्टेंस जो है वो D/2. तो पहले आप मुझे लेट अस कंसीडर, ये जो फर्स्ट वाला है उसे हम कंसीडर करते हैं C1, सेकेंड वाले को C2 कंसीडर करो, थर्ड वाले को C3 कंसीडर करो. तो पहले हाउ टू सॉल्व दिस, तो सिंपल लॉजिक, पहले C1 इज, आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे,
C2 एंड C3 पहले देखो कैसे कनेक्टेड है, वन आफ्टर द अदर। वन आफ्टर द अदर यानी क्या बोलोगे, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, वो दोनों सीरीज में है। एंड ये जो उनका रिजल्टेंट मिलेगा, लेट अस कंसीडर उनका रिजल्टेंट एज अ CS। अगर उसका CS है तो ये मीन्स आपको ये हटा के पूरा एक मिल जाएगा CS। तो अभी आप बोल सकते हो कि ये C1 एंड CS दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हो गया फिर आपका, तो वही लॉजिक अप्लाई करके अभी आपको सॉल्व करना है। तो पहले आप सिंपल लॉजिक लगाओगे, C2 फाइंड आउट करो, C3 फाइंड आउट करो। C2 क्या होगा, A एप्सिलॉन 0 K बाई D, वही फॉर्मूला है, A एप्सिलॉन 0 K अपॉन D। तो अभी आपके न्यूमेरिकल में क्या दिया है, A है आपका A बाई D, K का वैल्यू कितना दिया है उन्होंने 3, तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करो, और D कितना है D बाई 2, ये 2 विल गेट कैंसल, तो व्हाट इज लेफ्ट 3 एप्सिलॉन 0 A बाई D। ओके, C2 क्या है, A अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 6 अपॉन D बाई 2 विल गेट कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट 6 A एप्सिलॉन 0 बाई D। अभी ये सीरीज में है तो 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 करके यू विल गेट CS फाइंड आउट कर लो उसको। फिर पैरेलल में C1 के साथ है, तो पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, जो भी आपको CP फाइनल मिलेगा वो क्या आएगा C1 प्लस CS, इतना इजी है। क्लियर? नाउ वी डिड all the numericals of this lesson. Anyone is having any query then ask, or else next time we will start. Friday को अगर टाइम मिला तो फ्राइडे भी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी नया लेसन स्टार्ट कर देंगे। आपका फ्री डे है, अगर किसी का लेक्चर नहीं होगा तो देखिए। तो we will start with the new lesson from next time onwards, okay? और वो लेसन में कोई भी टॉपिक बोर्ड से स्किप नहीं है, तो we have to go for all। ये लेसन में जो भी है वो आप देख लो, and as per that you will do। ओके, ठीक है, ओके। कैन यू मैसेज मी इंडिविजुअली, आप मुझे, क्योंकि हर एक को तो जरूरत नहीं रहता है, तो जिसको भी चाहिए, और पहले भी किसी ने मुझे बोला था तो मैंने दे दिया था उसको नोट्स, तो इसके लिए यू जस्ट मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, तो आई विल सेंड यू फुल नोट्स फिर, या फिर आई विल सेंड ऑन ग्रुप आल्सो, नो प्रॉब्लम, नो इशू। ओके, चलो, ओके, देन आई विल स्टॉप बिकॉज यू आर हैविंग नेक्स्ट लेक्चर आल्सो। चलो, ओके, बाय, और इफ यू मैसेज मी इंडिविजुअली। Okay, bye. I will stop the meeting now.